Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we have a talk over concept of social process. What is the social process we will discuss in today's lecture? Actually, in today's lectures, we have a lot of things that are the part of social process. But the most important aspect that we have just to define what is a social process and the definition, the characteristics of that, and we will also learn about the factors favoring assimilations. After that, we will have a brief introduction of the social conflict, and we also learn the institutions, the major institutions that are the part of our society. But what is religious, political, or economical and social institutions that are the part of this social process, and how social change and culture change, how social and society and culture change according to the variations, and what are the major factors of social cultural change and process of mechanism of socio-cultural change. And at the last, we will discuss about the consequences of social and cultural change. What is a socialization? Actually, it's the process of interaction through individuals, it's the process of interaction through which an individual or the society share their habits, beliefs, skills, and standards of judgments that are necessary for its participation in social group or communities. हम अच्छी तरह समझते हैं कि जो एक पर्सन की बिलीव्स होते हैं, उसकी जो स्किल्स होती हैं, या उसकी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, या किसी सोसाइटीज़ की होती हैं, जब हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप्स के साथ हम शेयर करते हैं, तो वहाँ पर ही हमारी सोसाइटी का इमर्जेंस होता है. The process of educating the individuals into the social and cultural world, making him a particular member in society and its various group by indicating or by inducting him a particular member in society. बेसिकली हमारा जो पर्सन होता है या एक पर बंदा जो आपके ना किसी सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसकी ख़ास खसूसियत की वजह से, उसके पर्टिकुलर आस्पेक्ट्स की वजह से जो वो दूसरे ग्रुप से वेरिएट करता है, जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तभी हमारी सोसाइटी की इमर्जेंस और डिफरेंट ग्रुप्स आपस में इमर्ज होते हैं. तभी ये हमारा सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी वेरिएट करता है. इसमें एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ इंटरेक्शन का रखना, ये सोशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करता है. Basic concerns क्या हैं? What are the basic concerns of socialization? And what are the purpose of social processes? Just in order to become a social and cultural being, and to maintain social order by following social norms. At third level, we lead the qualitative and meaningful life, to learn and fulfill social roles, and just for existence of specified patterns of behavior to shape total personality of the individuals. These are the basic concerns of socialization. अगर हम सोशलाइजेशन के पर्पस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो कल्चर है, हम एक अच्छे सोसाइटी को, अच्छे कल्चर को डेवलप करना चाहते हैं. हम ये अपने नॉर्म्स को, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ हम एक अच्छी और एक मीनिंगफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं. और अगर हम देखते हैं तो जो हम इस तरह से लर्न करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को, हमारी सोसाइटी को, या हमारी कल्चरल वेरिएशंस को आपस में एक मंबा बना सके, जिसके तहत हम तमाम के तमाम ज़िंदगी को एक रोल मॉडल की तरह से गुजार सकें. बेसिकली ये सोशलाइजेशन, ये वो प्रोसीजर है जहाँ पर हम एक पर्सन की लाइफ को आपके लिए डेवलप करते हैं, उसे एक शेप देते हैं कि किस तरह उसका एक इमेज बनाते हैं, किस तरह उस इमेज के अकॉर्डिंगली उसे अपनी लाइफ को आगे लेके बढ़ना. तो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं सोशलाइजेशन की? कि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये कभी एंड नहीं हो सकता, कभी एक ताम पसीर नहीं हो सकता. ये आप अज़ल से देख लें कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हमारे पास हिस्ट्री के पड़े हुए हैं, जहाँ से ये सोसाइटी इमर्ज होती है. और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कितनी आज देखें कितनी ग्लोबलाइजेशन है, कितनी इंटरेक्शंस हैं. फिर ये एक टोटल ट्रांसमिशन है, ये एक मुकम्मल ट्रांसमिशन है एक कल्चर की. ये
कल्चर्स को चेंज करता है, और ये ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। और नंबर 4 इसकी जो मेजर करेक्टरिस्टिक्स है, ये इस्टेब्लिशेस तो होती है, लिमिट तो होती है एक पर्सनस के ऊपर, लेकिन सोसाइटीज़ के ऊपर लिमिटेशन नहीं लगा सकते हम इस्टेब्लिशेस लिमिट्स ऑन द इंडिविजुअल थ्रू सोशल इंटरेक्शंस। हम सोसाइटी से जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम अपनी लिमिटेशंस लगाते हैं। हमारे पास सम स्पेसिफाइड पर्सनस की इंडिविजुअल लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन सोसाइटी से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो वो हम उन लिमिटेशंस को एक फॉर्म दे देते हैं, एक शक्ल ढाल देते हैं कि यहाँ पर हमारी ये नॉर्म्स हैं, यहाँ पर हमारे ये कल्चर हैं, यहाँ पर हमारे ये ट्रेडिशंस हैं, ये और ये हमारे कस्टम्स हैं, इनसे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो ये एक सोशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर एक मेजर करेक्टर है। अब इस सोशलाइजेशन के प्रोसीजर को किस तरह हम डेवलप करते हैं, इसका मेथड क्या होता है, किस तरह हम गाइडेंस देते हैं, किस तरह हम टीचिंग को प्रीच करते हैं, हम किस तरह अपनी लिमिटेशंस को प्रिवील करते हैं, हम किस तरह इस विजुअल एड्स को हम अप्लाई करते हैं, और किस तरह एटमॉस्फेयर, प्रैक्टिस या दूसरी चीज़ें जो होती हैं हमारे इस सोशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हमारे साथ वेरिएट करती हैं। अगर के ऊपर हमने बात की और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन की बात की, और हमने देखा कि किस तरह ये सेगमेंट फ्रॉड ने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री डेवलपमेंट और थ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइंड को जो उसने